Dear students, good morning. So today we are going to solve the first question of problem set 1. And in first question we have got 5 questions, sub questions. So first one is in triangle ABC and triangle PQR. They have given 2 triangles. In triangle ABC and PQR by 1-to-1 correspondence, these ratios are equal. So when these ratios are equal, that means 2 triangles are similar. So when those 2 triangles are similar, we have to give the name. Okay. So the triangle says that it is something like this. ABC QRP. So if AB upon QR equals to BC upon PR equals to CA upon QP. So which option will be correct according to the diagram and according to the given information? So CAB PQR ABC PQR no. ABC PQR, we are starting from top and we are starting this side, we are starting from the down, which is wrong. So next ABC QRP, do we have the option QRP? No, moving BCA RPQ is also not there. BCA here, RPQ no, it's wrong. Next is CAB. Is there any option? Yes. CAB here. CAB and PQR. So here PQR. So this one matches. So option B is correct. That means we have to check the flow of the naming. When we name the triangles, that time we have to check the one-to-one correspondence. So according to this, those 2 triangles are similar by this option. That's it. Let's go to next question. It says that 2 diagrams have been given and in triangle DEF PQR. So they are taking the name of the triangle PQR. 2 angles are congruent. They have given, because of which similar. Which triangle is similar? QPR. How QPR is similar? Why not PQR is similar? तो हमने क्या किया? ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है. मैंने इस डायग्राम को ऐसा उल्टा कर दिया QPR, क्योंकि जब मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो उनके एंगल्स का जो फ्लो है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का इधर इधर इधर, तो उसका नेमिंग सही होना चाहिए. फॉर दैट रीजन मैंने उसको उल्टा कर दिया. उल्टा करने से हुआ क्या? इंस्टेड ऑफ राइटिंग PQR आई हैव रिटन QPR. ये दोनों ट्रायंगल मैंने ऐसा किए. ठीक है, द थिंग्स रिमेन सेम, ओनली द ऑब्जर्वेशन इज चेंजिंग. सो अकॉर्डिंग टू दैट DEF is similar to QPR by a test of similarity, and because of which we are writing the ratios. ये ratios मैंने लिखा, रीजन है corresponding sides of similar triangle. According to this, option B, that is DE upon PQ is equal to EF upon RP. तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है जो ऑप्शन बी है. So this is correct. Okay. So let's go to third question. Third question कहता है, question 3 of first. Third one. It says in triangle ABC and DEF, in triangle ABC and triangle DEF,
This is congruent to this and this is congruent to this. Two angles are given congruent. Now what they are asking? Which of the statement regarding the two triangles is true? कौन सा statement सही है? उन्होंने और एक चीज दी है, BE is equal to E and C is equal to F. और एक चीज दी है AB equals to 3DE, मतलब AB बड़ा है, AB ट्रायंगल बड़ा है, AB is equal to 3D, D से AB का साइज बड़ा है. So they are fine. Which option is correct? The triangles are not congruent and not similar. दो angles congruent हो रहे तो they are similar. The solution continue होता है. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF by AA test. दो एंगल congruent हो गए. B is congruent to E and C is congruent to F. That's why triangle ABC is similar to DEF. लेकिन क्या इसमें उनके साइड सेम है? ठीक है, ये एंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है? उनके साइड्स सेम है, कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं. But all the sides are not congruent. Therefore, triangles are similar but not congruent. Therefore, option, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विलैटरल. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल. इट्स गिवन. Therefore, triangle ABC similar to triangle DEF. They are also given. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होता है? उनके साइड्स का रेशियो का सिमिलर प्रोपोर्शन हो जाता है. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle DEF equals to side 1 का स्क्वायर on side 2 का square. They say that what is the length of DE? What is the length of DE if AB is equal to 4? तो यहाँ पे इसका साइड एक दिया है AB, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. इसका साइड है DE, यहाँ पे DE का स्क्वायर. इसका रेशियो गिवन था. एरिया ऑफ triangle ABC is to area of triangle DEF equals to 1:2. ये given था. ठीक है, तो इसकी जगह पे 1:2 आ जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा AB का वैल्यू 4 दिया है. AB equals to 4 given. AB का वैल्यू 4 आ जाएगा. 4 का स्क्वायर अपॉन DE पता नहीं है तो D का स्क्वायर. ये D स्क्वायर यहाँ पे आएगा. ये 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 इंटू 2. अब टेकिंग स्क्वायर रूट
बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो डी ई इज इक्वल टू, ये 2 है, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 होता है, सो डी ई इज 4 रूट 2, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इन फिगर XY parallel to BC is given. Therefore, by BPT, AX upon XB equals to AY upon YC. ऐसा हो सकता है, AX upon XB is equal to AY upon AC. ये by BPT हो सकता है। So which option will be correct? There are given 4 options: AB upon AC, AB upon AC, and AX upon AY, AX upon AY. क्या ये इक्वल है? अगर बार हम ये दोनों पैरेलल दिया है, रिपीट से ढूंढने के काम में AX upon XP, AY upon YC ये रेशियो मिलता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ए जो है ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए वाई, इन दो अलग अलग ट्रायंगल्स को अगर लिया जाए, ठीक है, दोनों अलग ट्रायंगल को लिया जाए तो उसमें क्या हमें मिलेगा, उनके जैसे ये ट्रायंगल में इस तरह ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए एक्स वाई, ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या मिलेगा, ए बी अपॉन ए सी दिया है, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी और ए एक्स अपॉन ए वाई, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी अपॉन ये यहाँ जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए वाई, तो दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड। तो इस हिसाब से AB upon X equals to AC upon Y is also correct. So they are given, that is as the first option which is correct. यहाँ पे हम एक ही ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन दिया है, अगर हम BPT फॉलो करते हैं तो ये वाला राइट है, और अगर हम उनके दिए ऑप्शन को फॉलो करते हैं तो ये वाला भी राइट है। So you go for this one, option A. So dear students, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम सेट 1, ज्योमेट्री। तो इसमें डायग्राम दिया गया है, कुछ वैल्यूज दिए हैं और वो हमें ये रेशियोज की वैल्यू ढूंढने बोल रहे हैं। तो पहले हम डायग्राम को देखते हैं। अगर हम डायग्राम को देखते होंगे, दो ट्रायंगल है, क्योंकि हर जगह पे दो ट्रायंगल की बात की गई है, ए बी डी और ए डी सी। ए बी डी ये अलग हो गया, ए डी सी अलग हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में हमें बेस और हाइट चेक करनी है। इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, तो बेस सेम नहीं है। अब हाइट देखते हैं। अगर हाइट को हम देखें, यहाँ पर हाइट है नहीं, पर हम ड्रॉ कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई। तो ये जो हाइट हमने ड्रॉ की है, इसको कंस्ट्रक्शन पार्ट में डाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट AE परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इस रेशियो के अंदर ABD का हाइट सेम है, AE और ADC इसका भी हाइट यही है। दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम होने की वजह से यहाँ पे आएगा
बेस 1 अपॉन बेस 2, इसका बेस क्या है BD अपॉन CD। इसका रीजन हम लिखेंगे ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज डाल दो। BD पता है आपको 7 है, यहाँ पे 7 लिख दो। इसका बेस क्या है DC, DC पता है आपको नहीं, तो ढूंढ लेते। BD 7 दिया था, BC 20 दिया था, तो DC होगा 20 माइनस 7 जो होगा 13। तो यहाँ पे आएगा 13, एक रेशियो मिल गया। इसी तरह यहाँ पे जाते हैं, इसका भी हाइट और बेस चेक करते हैं। ABD हाइट हो गया, ABC बड़ा है तो उसका भी हाइट सेम है, तो क्या होगा हाइट सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बेस 1 अपॉन बेस 2। तो इसका बेस का नाम क्या है ABD, तो BD ABC का BC। स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट आ जाएगा रीजन। अब उसकी वैल्यू लिख दो, BD की वैल्यू 7, BC की वैल्यू 20, ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ABC जिसका बेस DC है, यहाँ पे लिख दो B1 अपॉन B2, नाम लिख दो ADC DC बेस है अपॉन ABC BC बेस है, DC अपॉन BC, यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दो। BC की वैल्यू हमने ढूंढी है 13 अपॉन BC है 20, ये भी मिल गया। तो ये क्वेश्चन डन। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट इज 2:3। दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 2:3 है, तो क्या हमें ट्रायंगल का नाम पता है? नो। तो सपोज करेंगे लेट A1 बी द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, let A2 be the area of bigger triangle, let S1 be the side of smaller triangle, let S2 be the side of bigger triangle। ये हमें सपोज करना है। अभी आप S1 A1 स्मॉलर लिया हो और A2 बिगर लिया हो, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रेशियो दिया है वो है 2:3, तो ऊपर वाला रेशियो छोटा है, तो हम पहले वाले ट्रायंगल को छोटा ले लेते हैं। तो A1 be the area of smaller, A2 be the area of bigger triangle, S1 smaller side, S2 bigger side. Now, so they have given A1 is to A2 equals to 2:3. This is given. So according to the first condition, they say that if the base of smaller triangle is 6 centimeter, if the base means one side, if S1 is 6 centimeter, what is the corresponding base of bigger triangle? So what should be the S2? This is the question. If S1 is 6 centimeter, which is given, so what is S2? So in solution we will continue and write. Since A1 upon A2 equals to S1 square upon S2 square, so according to that, why? Because two areas, the ratio they have given. So by theorem of
areas of similar triangles, we can write like this. तो a1 upon a2 दिया था 2 upon 3, s1 is given 6 into 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 into 6 upon s2 which we don't know, s2 का स्क्वायर. Okay. Yes, one more thing. They have given, which we missed it. They have given height are same. Ratio of areas of two triangles with equal height is 2:3. So they have given unka ratio as well as they have given the height is same. They have mentioned the heights are same. तो जब हाइट सेम होती है किसी भी दो ट्रायंगल में तो उनके एरियाज के रेशियो का जो वैल्यू होता है वो बेस 1 अपॉन बेस 2 यानी उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस का प्रोपोर्शन होता है. तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2. यहाँ पे रीजन लिख देंगे रेशियो ऑफ एरियाज of two triangles with same height correspond to their basis. ठीक है, आप इसको टेक्स्ट बुक से भी कॉपी कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट बुक की प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि जब उनका हाइट सेम होता है तो उनके रेशियोज ऑफ बेसिस लिखे जाते हैं. तो b1 अपॉन b2, तो इसका वैल्यू दिया है 2:3. b1 मतलब साइड 1 6 है, b2 हमें पता नहीं है, दूसरे का बेस 2. ये क्रॉस करने क्या होगा, s2 3 into 6 अपॉन ये 2 नीचे आएगा, 2 3 is 6, 3 3 is 9. Therefore, उन्होंने बोला था find the corresponding base of bigger triangle. S2 bigger triangle का side है, therefore the corresponding base of bigger triangle is 9. तो बड़े ट्रायंगल का जो बेस है वो 9 हो गया. ये स्टेप के बाद में मैंने एक रेशियो लिखा था जिसमें हम साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर कर रहे थे. We were going wrong. Why? Because I did not see that height is same. I missed that. ऐसा होता है कभी कभी कि हम मिस कर देते हैं कोई इंफॉर्मेशन और हम रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं. ओके, दैट्स अ सिली मिस्टेक व्हिच वी शुड अवॉइड. तो मैंने चेंज किया, मैंने देखा क्वेश्चन को तो उसमें ये दिया था, फिर मैंने यहाँ से स्टेप कंटिन्यू किया व्हिच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, हाइट सेम है तो हमने ये रेशियो लिख दिया, रीजन लिख दिया, वैल्यूज डाली जो गिवन था और सॉल्व किया तो वी गेट 9. दैट्स इट. Now we are going to solve the fourth question of problem set 1 geometry. Here they have given the diagram. They say that ABC, angle ABC component triangle DC, both are 90 degree. It's given. AB is equal to 6, BC equals to 8. So they are the height and BC is the base. अगर हम सिर्फ ABC ट्रायंगल को देखेंगे तो बेस BC है, अगर BCB को देखेंगे तो बेस BC है, मतलब दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है. तो ऐसे रेशियोज को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस BC is same base for both the triangles, therefore area of ratio of triangle ABC
एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ BCD इक्वल्स टू, जब बेस सेम होता है तो हम क्या लिखते हैं, उनकी हाइट का रेशियो लिखते हैं, h1 अपॉन h2। h1 का नाम AB अपॉन B2, h2 हो गया BC, जिसकी वैल्यू है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट होगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स with same base will have corresponding height of the triangles। तो उनके जो हाइट्स है, वो ट्रायंगल का जो हाइट्स है वो हम लिखेंगे। तो AB 6 और ये है 8, 2 3 2 4, तो हमें मिल गया 3/4। ये ढूंढना था, इजी। Hi. Next question of the problem set is fifth question. In this question, they have given a diagram where they show that PQRS is a quadrilateral. They have divided the quadrilateral into two triangles. ऊपर का triangle का name they have given PQS, नीचे का triangle it is QRS। तो अगर हम इन दोनों triangle को देखेंगे तो उनका जो base है वो same है। तो ऐसे जब same होता है तो हम जब दो ट्रायंगल के रेशियोज को लिखते हैं तो उनका प्रॉपर्टी होता है एरियाज ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल बेसेस हैव देयर प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो जब बेस सेम होता है तो उनका साइड्स का रेशियो में हाइट अपॉन हाइट 1 अपॉन हाइट 2 ऐसे आ जाता है। तो दोनों की हाइट हमें पता होनी चाहिए। तो क्या उन्होंने हाइट दी है? इन क्वेश्चन दे हैव गिवन PM equals to 10 सेंटीमीटर। हम ऐसे लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में QS बेस सेम है, सेम। They have also given, अगर दो ट्रायंगल में बेस सेम है तो उनका रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS विल बी, उनका हाइट्स होगा h1 अपॉन h2। तो इसका हाइट क्या है? PM अपॉन NR। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ये वाला वैल्यू डाल देंगे। PM का वैल्यू गिवन था 10 सेंटीमीटर अपॉन NR, हमें ढूंढना NR है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है PQS इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर and QRS equal to 110 square centimeter. They have given, you can mention here, MN equals to 10, area of triangle PQS equals to 100, area of triangle QRS equals to 110, they have given। Okay, तो रीजन भी लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। therefore NR equals to, ये ऊपर क्या 110 into 10 अपॉन 100 नीचे आ गया। एक्सक्यूज मी, कैंसिल करते हैं, 1 0 2 0 कट, 1 0 1 0 कट, वी गेट 11। तो हमें NR मिल गया 11। ओके, वही हमें ढूंढना था। सो इन दे हैव रिटन इन सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर लिखा है तो हमें भी यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देना। अगर उन्होंने यूनिट नहीं दिया है, हम भी ना लिखें तो फाइन, पर यूनिट अगर दिया है तो लिखना जरूरी है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिगर दिया है। ये फिगर में उन्होंने वैल्यूज दिए हैं 5
3, इसको x, इसको 6.4 माइनस x। तो ADC मतलब ADC एक ही लाइन में आते हैं, कोलिनियर है। BEC एक ही लाइन में आते हैं, कोलिनियर है। DE is parallel to AB, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जब भी एक ट्रायंगल दिखे और दो लाइन पैरेलल हो तो हम BPT यूज कर सकते हैं। These informations are given. Therefore, by BPT theorem, we can write like this upon this equal to this upon this. CD upon DA equals to CE upon EB. ठीक है, अब इसकी वैल्यूज डालेंगे। CD कितना है 3 अपॉन DA कितना है 5 इक्वल्स टू CE कितना है CE 6.4 माइनस x अपॉन EB कितना है EB हमें नहीं पता। ठीक है, उसको x दिया है, हमें नहीं पता, तो उन्होंने उसको x सपोज किया। यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू कितना नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने गिवन दिया है। यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं b इक्वल्स टू x गिवन। तो इसकी जगह में हम लिखेंगे x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x into 3x equals to 5 into ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। 5 into 6.4x, 5 into 6.4x, 5 4s are 20, 2 carry, 5 6 are 30, 30 plus 2 32। एक डिजिट के पहले पॉइंट था तो हम भी पॉइंट डाल देते हैं। माइनस साइन ये वाला, पहले हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया ये मिला, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। साइन पहले लिख दिया 5 into x 5x, अब 3x माइनस 5x इस तरफ आएगा तो प्लस 5x हो जाएगा। 32.0 को 32 लिख सकते हैं। ये हो गया 8x इक्वल्स टू 32/8 नीचे आ जाएगा। So x equals to 8 1s are 8 4s are, तो x का वैल्यू मिल गया 4, मतलब b का वैल्यू मिल गया 4। क्या उन्होंने सेंटीमीटर दिया है? लेट्स चेक। नहीं, तो हम भी वैसे ही छोड़ देंगे। डन, इजी। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।